بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی بک سے ڈیٹا بیسز کا سیکشن سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم چیپٹر 1 پر ہیں اس وقت، وچ از ڈیٹا بیسکس۔ آج ہم نے انشاءاللہ سیکشن 1.2 ٹریڈیشنل فائل سسٹم پڑھنا ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ڈفرینس بٹوین ڈیٹا اینڈ انفارمیشن اور وہ آپریشنز جن کے ذریعے ہم ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں۔ کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرز کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں، اور جب ہم اس کو پروسیس کر کے کوئی معلومات باہر نکالتے ہیں تو اس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں۔ پروسیسڈ یا مینیپولیٹڈ ڈیٹا کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں۔ تین طرح کے آپریشنز ہم نے پڑھے تھے جو ہم ڈیٹا پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیٹا کیپچرنگ آپریشنز، وہ آپریشنز جن کے ذریعے ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسرے ڈیٹا مینیپولیشن آپریشنز، جن کے ذریعے ہم ڈیٹا کو پر کوئی مینیپولیشنز کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم ڈیٹا کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں، اس پر کوئی ارتھمیٹک آپریشنز لگا سکتے ہیں، ڈیٹا کو سارٹ کر سکتے ہیں، ترتیب دے سکتے ہیں اسینڈنگ آرڈر میں، ڈسینڈنگ میں، الفابیٹک آرڈر میں، یا ڈیٹا کو سیمرائز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ڈیٹا سے پورے ڈیٹا کی ایوریج نکال سکتے ہیں۔ اور پھر تیسری طرح کے آپریشنز ہم نے پڑھے تھے اپنی آؤٹ پٹ جو نکلتی ہے ڈیٹا سے اس کو مینیج کرنے کے لیے، جس میں فردر ہم سٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا کو، اس کو لیٹر یوز کے لیے، اور پھر بعد میں ریٹریو کر سکتے ہیں، اور ہم ڈیٹا کو نیٹ ورک پر یا کسی اور کو سینڈ کر سکتے ہیں، ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، اس کی کاپیز کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھی۔ ابھی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سیکشن 1.2 which is ٹریڈیشنل فائل سسٹم۔ ڈیٹا بیسز سے پہلے جو طریقہ استعمال کیا جاتا تھا ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے وہ فائل سسٹم تھا، ٹریڈیشنل فائل سسٹم۔ کچھ بیسکس ٹریڈیشنل فائل سسٹم کی بیسک ڈیفینیشنز۔ ریکارڈ ہم ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں which is a collection of related fields یا facts about something which is treated as a single unit. For example، یہ آپ کے سامنے ایک ریکٹینگولر باکس جو بنا ہوا ہے، اس میں ایک کالج امپلائی کی بایوگرافک انفارمیشن ہے۔ کیونکہ یہ کسی سے ریلیٹڈ فیکٹس ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں امپلائی کا نمبر ہے، اس کا نام ہے، اس کا گریڈ، اس کی ڈیزگنیشن، اس کی ڈیٹ آف جوائننگ، اس کی کوالیفیکیشن، یعنی کہ ایک امپلائی کے متعلق تمام معلومات ہیں۔ یہ ریلیٹڈ فیکٹس ہیں which are treated as a single unit، تو اس کو ہم ریکارڈ کہتے ہیں۔ This is an employee record، a college employee's record۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہو سکتا ہے جس میں اس اسٹوڈنٹ کا نام ہے، اس کا رول نمبر ہے، اس کا فادر نیم، اس کا ایڈریس، اس کے کورسز وغیرہ وغیرہ، اس سے ریلیٹڈ تمام فیکٹس جب ہم اکٹھے کر دیتے ہیں تو اس کو ہم ایک ریکارڈ کہتے ہیں۔ اور جب بہت سے ریلیٹڈ ریکارڈز کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں تو اس کو ہم ایک فائل کہتے ہیں۔ A collection of related records treated as a single unit is called a file۔ جیسے کہ آپ کے کالج میں جتنے امپلائیز ہیں ان سب کا ڈیٹا میں اکٹھا کر دوں تو اس کو ہم ایک فائل کہتے ہیں۔ جیسے سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیٹ سے ایک کالج میں 4 ہی امپلائیز ہیں، گل نایاب، مریم تنویر، تنابش رینا اینڈ پلبشہ اکبر۔
पिछली स्लाइड में जैसे हमने देखा था, एक रिकॉर्ड में एक एम्प्लॉय की तमाम इंफॉर्मेशन है, तो ये चारों एम्प्लॉयज़ की जब वो रिकॉर्ड मैंने इकट्ठे कर दिए जिसमें चारों एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है, तो इस कलेक्शन को हम फाइल कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं तमाम स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर दूं, तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को इकट्ठा कर दूं, तो उस कलेक्शन को हम फाइल कहेंगे। फाइल्स मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। अगर हम फाइल्स के यूजेज के हवाले से देखें, उसके इस्तेमाल के हवाले से, तो 3 तरह की फाइल्स हो सकती हैं, 3 तरीके से क्लासिफाई की जा सकती हैं: मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। अगर हम फाइल्स की फंक्शनैलिटी के हवाले से देखें कि फ़ाइल काम क्या करती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह की फाइल्स हो सकती हैं। इसी तरह स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि फ़ाइल स्टोर किस तरीके पे होती है, किस तर्ज पे स्टोर होती है सिस्टम में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम फाइल को मुख्तलिफ तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये 3 तरह की क्लासिफिकेशंस आपके कोर्स में शामिल हैं। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इस्तेमाल के हवाले से 3 तरह की फाइल्स हो सकती हैं: मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल। मास्टर फाइल आप समझ लें मेन फाइल है जिसमें आपका सारा डेटा इंफॉर्मेशन पड़ा है, which is kind of permanent and remains constant over a long period of time. जब भी आपकी फाइल्स या रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन चेंज होगी, अपडेट होगी, तो ये मास्टर फाइल अपडेट हो जाएगी। ट्रांजैक्शन फाइल जो है वो एक टेम्पररी काइंड ऑफ फाइल होती है, जो जब डेटा पे कोई प्रोसेसिंग होनी है तो उससे पहले यूजुअली टेम्परेरली क्रिएट की जाती है और इस प्रोसेसिंग के बाद वो फाइल ख़त्म हो जाती है। बैकअप फाइल्स जो हैं वो आमतौर पे किसी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी के ज़रिए क्रिएट की जाती हैं। दीज आर ऑल्सो परमानेंट फाइल्स जिनका पर्पस डेटा को बैकअप करना होता है कि इन केस डेटा एक जगह करप्ट हो जाए या डिलीट हो जाए तो उसका कोई बैकअप पड़ा हो, उसकी काइंड ऑफ एक और कॉपी पड़ी हो जहाँ से वो फिर रिट्रीव किया जा सके। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह से हम 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 टाइप्स की फाइल्स होती हैं: प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर प्रोग्राम्स पड़े होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के लिए कि उसने क्या करना है। जबकि डेटा फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर डेटा पड़ा होता है। फाइल्स के साथ आमतौर पे एक एक्सटेंशन भी होती है। आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो फाइल नेम्स को, तो उसके 2 हिस्से होते हैं जो कि डॉट से सेपरेटेड होते हैं। डॉट से पहले वाला हिस्सा फाइल का नाम होता है जिससे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और डॉट के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो फाइल की एक्सटेंशन होती है जो रिप्रेजेंट करती है वो किस तरह की फ़ाइल है। यूजुअली जिस सॉफ्टवेयर से फ़ाइल क्रिएट की जाती है वही ये एक्सटेंशन असाइन करता है। जब आप सेव करते हैं तो एक्सटेंशन खुद से साथ लग जाती है। प्रोग्राम फाइल्स जो हैं उनमें फर्दर 2 तरह की होती हैं कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और दूसरी नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की एक्सटेंशन यूजुअली .exe होती है, जिसको जैसे आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कोई जिन्हें आप चलाते हैं उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। .exe फाइल होती है जिसको आप डबल क्लिक करके रन करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं और वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाता है। इसके अलावा प्रोग्राम फाइल्स भी होती हैं जिनमें सोर्स कोड होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक के जैसे 2 हिस्से हैं, पहला डेटाबेस का, दूसरा सी का। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब हम इंशाल्लाह वो हिस्सा पढ़ेंगे तो आप अपने प्रोग्राम्स जब लिखेंगे
उन फाइल्स को आप सेव करेंगे तो उनके साथ .c या .cpp एक्सटेंशन लग जाएगी, जो रिप्रेजेंट करती है कि ये C की या C++ की फाइल है। तो प्रोग्राम फाइल्स की एक्सटेंशंस जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगी उसकी एक्सटेंशन होगी, या फिर अगर वो एग्जीक्यूटिबल फाइल है तो .exe आमतौर पे एक्सटेंशन होती है। डेटा फाइल्स जो हैं जिनमें डेटा रखा जाता है, जैसे कि आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिखते हैं या एक्सेल में कुछ लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, तो ये सब डेटा फाइल्स होते हैं, आप इनमें डेटा रखते हैं और इनकी एक्सटेंशन उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फ़ाइल बनाते हैं, जब आप उसको सेव करते हैं तो उसके साथ आखिर में खुद .doc लग जाता है, .doc, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है। इसी तरह अगर आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे फॉर एग्जांपल बनाते हैं कोई फ़ाइल, उसको जब आप सेव करते हैं तो .xls उसके साथ एक्सटेंशन लग जाती है। इसी तरह डेटाबेस की फाइल्स की आमतौर पर एक्सटेंशन .dat, .mdb होती है। टेक्स्ट फाइल्स की नोटपैड में जो आप बनाते हैं एक्सटेंशन .text होती है। इमेज फाइल्स की एक्सटेंशंस .tiff, .jpg, eps, .gif, .bmp, .png, ये एक्सटेंशंस होती हैं यूजुअली इमेज फाइल्स की, तस्वीरें जो पिक्चर्स होती हैं उनकी। ऑडियो फाइल्स जिनमें आवाज़ होती है उनकी एक्सटेंशन यूजुअली .wav या .mid होती है। वीडियो फाइल्स जिनमें आवाज़ के साथ साथ तस्वीर भी होती है उनकी एक्सटेंशंस यूजुअली .avi या .mpeg होती है। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह की फाइल्स हो सकती हैं। स्टोरेज यानी जिस तर्ज पर फाइल्स कंप्यूटर पर स्टोर होती हैं उस हिसाब से 3 अक़साम हो सकती हैं: सिक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स, एंड इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल्स। सिक्वेंशियल फाइल्स वो होती हैं जो उसी तरतीब से स्टोर होती हैं जिस तरतीब से उसमें रिकॉर्ड्स एंटर किए जाते हैं, उसी सीक्वेंस से वो हार्ड डिस्क पर या जो भी स्टोरेज मीडियम है उस पर सेव होती जाती हैं। सिक्वेंशियल फाइल्स का जो है प्रोसेसिंग टाइम वो ज़्यादा लगता है क्योंकि ये उसी तरतीब पे सेव होती हैं जिस पर रिकॉर्ड्स एंटर होते हैं, तो इनको प्रोसेस करने में लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। इसके मुकाबले में जो डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स हैं उनका प्रोसेसिंग टाइम कम होता है। क्यों? वो आमतौर पर उस तरतीब पर स्टोर नहीं होती जिस तरतीब से रिकॉर्ड्स एंटर हों, बल्कि वो जो आपके रिकॉर्ड्स में की फील्ड है, पहले ये पता होना चाहिए की फील्ड क्या है। जैसे हमने पीछे कुछ रिकॉर्ड्स देखे, एम्प्लॉय रिकॉर्ड देखा, तो एम्प्लॉय का जो नंबर है वो उसे आप की फील्ड कह सकते हैं, जो हर एम्प्लॉय का डिफरेंट होगा। इसी तरीके से अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स का रोल नंबर जो है वो की फील्ड है, जो हर स्टूडेंट का अलग होता है। तो की फील्ड के बेस पर इन फाइल्स के लिए वो एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है जिस पर उस रिकॉर्ड को स्टोर करना है। सही है? तो इनका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू सिक्वेंशियल फाइल्स। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स जो हैं इनमें भी इसी तरीके से की फील्ड्स के बेस पर, रिकॉर्ड की फील्ड्स के बेस पर वो एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है जिस पर वो एड्रेस निकालते हैं जिस पर रिकॉर्ड सेव किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन, ये जो आपके लिए एक टेबल है कि कौन सी की फील्ड किस एड्रेस पे सेव हो रही है, ये टेबल अलग से सेव कर लिया जाता है। तो इसको मेमोरी पर जगह, स्टोरेज पर जगह तो ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन इसका जो एक्सेस है वो या प्रोसेसिंग है इसकी वो फास्टर होती है, जिस तरह डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स की है। तो इसमें ऊपर वाले 1 और 2 दोनों के बेनिफिट्स आ जाते हैं।
اس میں آپ سیکوینشلی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور رینڈملی کوئی بھی ریکارڈ ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کا ایکسیس ٹائم جو ہے وہ کم ہوگا، لیکن اس کو سٹوریج پہ اسپیس کچھ زیادہ چاہیے ہوگی، کیونکہ اس میں یہ ٹیبل بھی ہم الگ سے سٹور کر رہے ہیں جس میں یہ انفارمیشن ہے کہ کون سا ریکارڈ کس ایڈریس پر رکھا جا رہا ہے، لیکن ایکسیس ٹائم ہو جائے گا. تو یہ 3 طرح کی فائلز ہیں سٹوریج پوائنٹ آف ویو سے. اچھا جی، آج ہم نے پڑھا آپ کے بک سے سیکشن 1.2 ٹریڈیشنل فائل سسٹم. ٹریڈیشنل فائل سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہماری ٹریڈیشنل فائلز ہیں انہی میں ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے، کوئی خاص ڈیٹا بیس نہیں استعمال کیا جاتا. ان میں کیسے رکھا جاتا ہے، اس کی کیا ٹرمینالوجی ہے؟ ریکارڈ ہم کہتے ہیں ایک کلیکشن آف ریلیٹڈ فیلڈز کو جو کہ ایز اے سنگل یونٹ ایکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ایک امپلائی ریکارڈ میں اس امپلائی سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن ہو سکتی ہے، ایک اسٹوڈنٹ ریکارڈ میں ایک اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن ہو سکتی ہے. اور جب ہم بہت سارے ریکارڈز کو اکٹھا رکھ لیتے ہیں تو اس کلیکشن کو ہم فائل کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کی کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اگر میں اکٹھا رکھ لوں تو اس کو ہم ایک فائل کہہ سکتے ہیں. فائلز کی کلاسیفیکیشنز 3 مختلف طریقے سے، 3 مختلف پوائنٹ آف ویو سے آپ کے کورس میں شامل ہیں. یوزیج پوائنٹ آف ویو سے، فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے اور اسٹوریج پوائنٹ آف ویو سے. ان تینوں طور پہ ہم نے دیکھا کہ فائلز کو کس طریقے سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ کلاس سے پہلے آپ یہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر کے آئیں گے تاکہ ہم اگلا ٹاپک 1.3 which is ڈیٹا بیسز اس کو سمجھ سکیں. اس سے پہلے اس سیکشن کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ کے تو پھر نیکسٹ کلاس میں آنا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن جی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.